So we will continue with cerebral cortical area. All of you must have gone through various sulci and gyri. So quick revision. ભાઈ બોલો એ પ્રમાણે આવે છે કે આગળ પાછળ આવે? હા એ જોજે. You can see બીજા. Okay, fine. Calcarine sulcus extending in occipital lobe, and this is your parieto-occipital sulcus. Anterior to that you have suprasplenial sulcus. Okay, above suprasplenial sulcus quadrangular area known as precuneus. Behind this triangular area known as cuneus. Okay, and above this your parahippocampal gyrus will continue as part of limbic lobe. So we have seen all these things. बारी बंद कर दे भी. Now we will continue with cerebral cortical area. So if you talk about morphological types, these topics are not much important. Just have to remember the names: limiting sulcus, axial sulcus, and operculated sulcus. Limiting sulcus, it limits one particular gyrus. Axial sulcus is forming axis of any particular gyrus, and operculated means lid. It is enclosing or covering something. And according to depth, there is complete or incomplete. Okay. These are the histological names: granular cortex, agranular cortex, and allocortex. Allo means old or archy. Okay. So this cortex having 3 layers, and neocortex or neopallium having 6 layers. Okay. So evolutionary, old cortex represents 3 layers only, and neocortex or isocortex represents 6 layers. Okay, and according to granules, it is granular or agranular. So these are the histological names, layers of the cerebral cortex. Granular is also known as coniocortex or dust cortex. Conio means dust or particle. Now this is important area, functional or cortical area. Okay, you have to correlate these things functionally. So let's jump. Now you have to remember numbers and its function. Okay, name of the function of area. So revise the previous diagram: central sulcus, precentral sulcus, postcentral sulcus, superior frontal sulcus, inferior frontal sulcus, superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus, lateral sulcus, posterior ramus, anterior ramus, horizontal ramus, ascending ramus, parieto-occipital sulcus, transverse occipital sulcus, arcus parieto-occipitalis, supramarginal gyrus, lingual gyrus, superior parietal lobule, inferior parietal lobule, occipital cortex,
lateral occipital and lunate sulcus. Similar things. Medial surface, central sulcus, precentral sulcus, postcentral sulcus, callosal sulcus, cingulate sulcus, suprasplenial sulcus, parieto-occipital sulcus, callosal sulcus, सॉरी callosal यहाँ पे है, दिस इज calcarine sulcus, दिस इज collateral sulcus और medial occipitotemporal, this is lateral occipitotemporal sulcus. So this is all about all sulci. Now you have to remember numbers and area. Central sulcus and precentral sulcus enclose precentral gyrus. Okay, so precentral gyrus, number 4, primary motor area. So central sulcus के आगे वाला most of we will have motor, central sulcus के पीछे all this we will have sensory. Okay, one common pattern you should remember: 3 levels of area: primary area, secondary area, and tertiary area. Right? Primary area will have relay, it will have afferents and efferents. Okay, secondary and tertiary area will be thinking, it will be programming, and it will intelligently plan whatever we want to do. So function of any primary area, remember this is a general feature. Okay, any primary area will relay, it will integrate all the sensation, and any secondary or tertiary area or any supplementary area, it will think, it will plan, program, it will compare, and it will correlate with the memory or past. So both will work together. So this is primary motor area. It will execute motor or movements of the skeletal muscle. स्पाइनल कोड का डिज़ाइन यहीं पे फॉलो होता है. सेंट्रल सल्कस के आगे सब कुछ मोटर है, इसके पीछे सब कुछ सेंसरी है. ओके, एग्जाम में कुछ भी नहीं आता तो यहीं से याद करना है. ठीक है, कि हम किस एरिया में घूम रहे हैं, वेदर इट इज़ सेंसरी, वेदर इट इज़ मोटर. सो स्टेप बाय स्टेप ही हमें जवाब देना है और सोचना भी है. सो सेंट्रल सल्कस के आगे प्राइमरी मोटर एरिया, प्रीसेंट्रल गायरस एरिया नंबर 4, प्राइमरी मोटर एरिया. इसके और आगे जाएंगे, प्री मोटर एरिया 6 and 8, एरिया 6 and 8, that is प्री मोटर एरिया in front of प्रीसेंट्रल सल्कस. ओके, फर्दर आगे यहाँ पे जाएंगे, इट विल बी सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. अगेन प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. राइट, सो दीज आर द 3 मोटर एरिया. ये भी है फ्रंटल आई फील्ड, दिस इज कंट्रोलिंग बायलेटरल मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल. ठीक है, सो इट इज मोटर और ओक्यूलो मोटर एरिया, ऑल्सो नोन एज फ्रंटल आई फील्ड. यहाँ पे मोटर स्पीच एरिया, सी कॉमन वर्ड इज मोटर. ये है स्केलेटो मोटर, वॉलंटरी मोटर एरियाज. ये है वॉलंटरी मोटर बट इट इज स्पीच एरिया. सो इट विल कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट स्पीच. लेरिंजियल मसल से लेके लिप तक के सभी मसल्स को ये कंट्रोल करेगा. ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया. ओके, 44, 45. सो इसको गायरस का नाम देना हो या सल्कस का नाम देना हो तो एंटीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस, हॉरिजॉन्टल रेमस,
ascending ramus, it means pars triangularis and pars opercularis enclose area 44 and 45 which is known as Broca's motor speech area. तो एग्जाम में वाइवा में आंसर देना हो तो जो भी याद आता है you have to correlate anterior ramus of lateral sulcus, ascending horizontal ramus and ascending ramus के बीच में pars triangularis and pars opercularis contain area 44, 45 called motor speech area of Broca. ये पूरा कंप्लीट आंसर हुआ. सेम एरिया यहाँ पे इसको ऐसे ही बोलना है. पोस्टीरियर ramus of lateral sulcus enclosing dividing inferior parietal lobule into supramarginal and angular gyrus, area number 39 and 40, Wernicke's sensory speech area. Posterior ramus of lateral sulcus dividing inferior parietal lobule into supramarginal and angular gyri, area 39 and 40, Wernicke's sensory speech area. तो ये सेंसरी स्पीच है. इट मीन्स इट ऑडिटरी, सेकेंडरी ऑडिटरी. ये सुनेगा और समझेगा. आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ. सो यू आर रिलेइंग योर ऑडिटरी सेंसेशंस हियर. एरिया 41, 42 एंड 22. दिस इज योर टेम्पोरल लोब. तो इन द टेम्पोरल लोब just below posterior ramus of lateral sulcus, area 41, 42 and 22. 41, 42 is primary auditory area or auditosensory area. Area 22 is secondary auditory area or auditopsychic area. See, what I recommend is you use simple words first. Primary, secondary, tertiary और प्राइमरी सेकेंडरी एसोसिएशन. ये तीनों वर्ड हमें यूज़ करने हैं. अगर ये वर्ड में कॉन्फिडेंस आ जाता है तभी यू हैव टू यूज़ अनदर वर्ड्स, सेंसरी, साइकिक, वर्निक, ब्रोका, व्हाटएवर. पहले उसका प्रॉपर नाम ही करना है. एग्ज़ाम में सिंपल टर्म्स फर्स्ट यूज़ करनी है. वो आ जाती है तो बाद में आपको याद आता है तो आपको उसके दूसरे नाम बोलने हैं. ठीक है. तो हर एक नाम का मीनिंग होता है. जो मीनिंग अपने को पल्ले पड़ता है, वट एवर इज पैलेटेबल टू यू, यू विल यूज देम फर्स्ट. सो आई यूज प्राइमरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया. तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41, 42 विल रिले ऑडिटरी सेंसेशन. आपका पूरा ऑडिटरी पाथवे यहाँ पे ख़त्म हुआ. नीचे से हमने शुरू किया था. कोक्लिया, कोक्लियर नर्व, वेंट्रल एंड डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई, decussation in trapezoid body, ascending fibers lateral lemniscus, nuclei of lateral lemniscus, inferior colliculus, medial geniculate body, inferior brachium, okay, then MGB, then auditory radiation in internal capsule, और फिर यहाँ पे 41, 42. This is your auditory pathway. तो पूरा पाथवे जो नीचे से आपको याद करना है तो उसका सबका टर्मिनेशन ये एरिया पे होगा. ठीक है. तो व्हाट आई रिकमेंड इज व्हेन यू रीड दिस एरिया, जब भी इस एरिया का नाम और नंबर बोलो तो नीचे से पूरा पाथवे भी याद करो. ठीक है. तो ये समझने के लिए सभी पाथवे का लिस्ट बना के बैठना पड़ेगा. जैसे ओके. तो ये हो गया पूरा ऑडिटरी, प्राइमरी ऑडिटरी एंड सेकेंडरी ऑडिटरी एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया. तो ये दिस विल लिसन, दिस विल रिले योर ऑडिटरी सेंसेशन. फिर ये साइकिक है, उसको समझेगा क्या बोला, क्यों बोला, कौन बोला, किसको बोला, मुझे ही क्यों बोला, उसको क्यों नहीं बोला. एवरीथिंग हैपन्स हियर. फिर दिस एरिया इंटरप्रेट्स, it will think, it will produce meaning. okay. any secondary और association area जो भी है
ये क्या करता है, इसका इंटरप्रिटेशन करता है। इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये सोचता है। थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल वर्क हैपन्स हियर, दैट मीन्स इट इज लैंग्वेज। हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, इट विल इंटरप्रेट हियर, ओके। और ये जिसका स्ट्रॉन्ग है वो सब कुछ समझ जाता है, जो भी सुनाई दिया सब कुछ को रिलेट करने का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। सो दिस इज सेंसरी स्पीच एरिया, इट विल ऑल्सो परफॉर्म लैंग्वेज फंक्शन। लैंग्वेज के दो पहलू है, सेंसरी एंड मोटर। तो मोटर स्पीच एरिया आगे है फ्रंटल लोब में, एंड सेंसरी स्पीच एरिया यहाँ पे पीछे है। तो जब आप लेक्चर सुनते हैं, व्हेन यू लिसन समबडी, यू वर्क ऑन दिस एरिया। समझ आ गया तो यहीं से समझ आएगा, और फिर कुछ बोलना हुआ तो इसको यहाँ से बोलना होगा, ठीक है। चलिए, एरिया 17, 18, 19। सो दिस इज विजुअल कॉर्टेक्स, ओके। सी, चारों लोब के हम नाम याद करते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज़ें, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो फ्रंटल लोब का काम है मोटर और पर्सनालिटी, ठीक है। टेम्पोरल लोब का काम है लिसनिंग, सब कुछ सुनना। ये कान के नज़दीक है, इट इज़ नियरर टू ईयर, सो इट विल परफॉर्म लिसनिंग। थोड़ी बहुत स्मेल है तो वो यहाँ से आ जाएगी, कुछ खाया पिया तो वो भी यहाँ से आ जाएगा। ये है पैराइटल लोब्यूल, ठीक है। ये मीडियल और लेटरल सरफेस को इंटीग्रेट करता है। ये है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे है विजुअल कॉर्टेक्स। तो जो भी हमारा ऑप्टिक पाथवे है, आई बॉल, रेटिना, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक, एलजीबी एंड ऑप्टिक रेडिएशन इन इंटरनल कैप्सूल। तो ऑप्टिक रेडिएशन यहाँ पे टर्मिनेट हुए। दिस इज प्राइमरी। सी 17, 18, 19. 17 means primary visual area. 18 and 19 is secondary visual area और visual association area. दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी विजुअल एरिया इज ऑल्सो नोन एज विजुअल सेंसरी एरिया। यहाँ पे भी था विजुअल ऑडिटो सेंसरी, तो यहाँ पे आया विजुअल सेंसरी, ठीक है। यहाँ पे आया प्राइमरी सेंसरी। पूरे स्पाइनल कॉर्ड से ट्रंक, अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक, सबके सेंसेशन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और उसका एसोसिएशन यहाँ पे होता है। तो पहले हम मोटर की बातें पूरी करते हैं, जैसे ये हमने ख़त्म किया, ये हमने ख़त्म किया। तो दिस इज योर प्राइमरी विजुअल एरिया 17, बिहाइंड ल्यूनेट सल्कस, ऑक्सीपिटल पोल, ठीक है, उसके आसपास का एरिया प्राइमरी विजुअल एरिया और विजुओ सेंसरी एरिया। दूसरा एरिया 18 एंड 19 विजुअल एसोसिएशन एरिया और सेकेंडरी विजुअल एरिया। बाकी के नाम विजुओ साइकिक एरिया। साइकिक मीन्स अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग, थिंकिंग। तीसरा नाम है स्ट्राएट। जैसे हमने देखा था कॉर्पस स्ट्राएटम, तो जो फाइबर है उसकी पैटर्न स्ट्राएटेड या बैंड जैसी है। तो यहाँ पे भी विजुअल कॉर्टेक्स में फाइबर्स स्ट्राया और बैंड जैसे होते हैं। सो दिस वाइट मैटर इज नोन एज स्ट्राएट मैटर, ओके। तो स्ट्राएट एरिया, ठीक है। स्ट्राया का नाम है स्ट्राया ऑफ जिनारी, किसी साइंटिस्ट का नाम लगता है। तो स्ट्राया ऑफ जिनारी, दैट इज विजुअल स्ट्राया, ओके। सो दिस स्ट्राएटेड कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स इज हैविंग मॉर्फोलॉजिकली स्ट्राएशंस। तो इसका तीसरा नाम हुआ पेरास्ट्राएट एंड पेरीस्ट्राएट एरिया, ठीक है। स्ट्राएट मीन्स प्राइमरी एरिया एंड पेरा एंड पेरीस्ट्राएट मीन्स सेकेंडरी एरिया। तो 3 या 4 नाम हुए। पहला नाम सिंपल, प्राइमरी विजुअल एरिया 17,
सेकेंडरी विजुअल एरिया 18-19, ठीक है। बाकी के नाम विजियो सेंसरी एंड विजियो साइकिक एंड स्ट्राइड कॉर्टेक्स, पेरास्ट्राइड कॉर्टेक्स एंड पेरिस्ट्राइड कॉर्टेक्स। जिस ऑथर को जो भी नाम पसंद आता है वो लिखता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी या किसी और एनाटॉमी की बुक्स में आप देखेंगे ये सभी वर्ड्स अपने मूड के हिसाब से यूज होते हैं। सो यू शुड रिमेंबर एवरी वर्ड्स। और कुछ, हाँ, दिस प्री फ्रंटल एरिया हमने देखा प्राइमरी मोटर एरिया विल इनिशिएट मूवमेंट, ये स्केलेटल मसल को मूव करेगा, ठीक है। मसल की बात याद आई तो यू हैव टू रिमेंबर दैट एनी सिंगल मसल इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन मोटर एरिया। ये पूरे एरिया को पूरे ग्रुप ही समझ में आता है। दिस विल कमांड द होल ग्रुप, फ्लेक्सर ग्रुप, एक्सटेंसर ग्रुप, रोटेटर ग्रुप, ठीक है। इट विल मूव द होल ग्रुप, ठीक है। इट विल रिमेंबर ओनली जॉइंट्स। दिस एरिया डज नॉट रिमेंबर मसल्स, it remembers joints, so joints and its movements. So you cannot move any single muscle, skeletal muscle in your body. Any single skeletal muscle is almost impossible to move because it is not represented in your brain. It will always associate with supplementary or group of muscles. So this will initiate movement and premotor area will program, it will guide or direct this primary motor area. ये क्या करेगा? सोचेगा, समझेगा, नापेगा, तोलेगा, ठीक है। It will program everything, it will think everything and then so अगर ये ऐसा करता है तो it is connected to cerebellum, ओके, क्योंकि cerebellum को भी यही काम करना है। So this will guide the primary motor area to perform the movement, to program the movement, okay. And this is prefrontal area 9, 10, 11. यहाँ पे see this is connected to ventral thalamus, anterior nucleus of thalamus and limbic system. So this area is your personality center. Personality includes intelligence, emotion, memory, ठीक है, logic, thinking, every intelligent function they are done here, prefrontal area. कोई बुद्धू होता है तो यहाँ पे हम फिंगर डाल के उसको साइन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता। That is your personality or frontal lobe. And this is directly connected to ventral thalamus and limbic system, okay. So those who are powerful people, they are developing two areas, prefrontal and these two, sensory and motor speech. ये तीनों अगर पावरफुल है तो बंदा पूरा पावरफुल बनता है, ओके, फाइन। अब थोड़ी सी सेंसेशन की बात हो जाए। पोस्टीरियर टू सेंट्रल सल्कस, दिस इज योर प्राइमरी सेंसरी एरिया। तो यहाँ पे पूरे बॉडी के सेंसेशन रिले होते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड, हेड एंड नेक, ठीक है। ऑल सेंसेशन विल पास फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड एंड नेक टू वेरियस लेमनिस्काई, MTSL, मीडियल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल, लेटरल। तो इसमें से लेटरल को निकाल दो क्योंकि वो ऑडिटरी होता है, यहाँ पे चला जाएगा। तो मीडियल, स्पाइनल एंड ट्राइजेमिनल तीनों यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब वो VP ऑफ थैलेमस से गुजरे, VPL एंड VPM, ठीक है, वहाँ से पास होके यहाँ पे आए। तो प्राइमरी सेंसरी एरिया। फिर इसका मीनिंग कौन निकालेगा? वेदर इट इज टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्राइसेप्शन, डीप, सुपरफिशियल, अच्छा है, बुरा है, दैट इज डन हियर। सेंसरी एसोसिएशन एरिया और सेकेंडरी सेंसरी एरिया।
It will produce meaning of the sensation. It will feel the sensation. Okay. So that is your secondary sensory area और association sensory area. तो ये दोनों यहाँ से निकल के मीडियल सरफेस में कंटिन्यू करो. If you continue them on medial surface, सेंट्रल सल्कस के आगे प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, ठीक है, इस पूरे एरिया का नाम दिया है पेरा सेंट्रल लोब्यूल. This will also control your micturition and deification. These are the reflex sensations. ठीक है, reflex, that is part of sensory system. Okay, so this will develop later on. कुछ चीज़ें हैं जो when a child becomes older, जैसे वो प्री एडोलेसेंट और एडोलेसेंट की एज में जाता है, so some of the area develop very much late. So control of bowel, bladder, control of speech and control of language, that is developing later on in the development. So this medial frontal gyrus is continuation of superior frontal gyrus, and it is continuation of your frontal area, frontal lobe. Okay, और कुछ ये पूरा जो है ये हमने देखा था लिम्बिक लोब, ये पूरा फॉर्मिंग अ लार्ज सर्कल और लिम्बस, हिपोकैम्पस, पेरा हिपोकैम्पल गायरस, डेंटेड गायरस, इस्थमस, सुप्रास्प्लेनियल गायरस, सिंगुलेट गायरस, पेरा टर्मिनल, पेरा ऑल्फैक्टरी, और वापस एमिगडाला, वहाँ से फिर थैलेमस, थैलेमस टू सिंगुलेट, और वापस फिर घूम के पेरा हिपोकैम्पल गायरस. तो इन सब को हमने अलग अलग वाइट मैटर से कनेक्ट किया था. ठीक है, तो वाइट मैटर में यू हैव टू कनेक्ट दिस ऑल. So this is all about functional areas. Let's see if something is remaining. Okay, this insula हमने देखा था इंसुला. ठीक है, तो इन द मार्जिन ऑफ लेटरल सल्कस, अगर इसको हम खोलते हैं, if you open up lateral sulcus and go inside, if you open up the lips of lateral sulcus, posterior ramus, so this is the buried submerged portion of cerebral cortex known as insula. So ventral or anterior part of insula and posterior part of insula. The posterior insular cortex is having language function, that means वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया जो यहाँ पे था, so it is directly linked up with वर्निक सेंसरी एरिया परफॉर्मिंग लैंग्वेज फंक्शन. तो ये पूरा प्रिमिटिव एरिया है जो इवोल्यूशन में सबसे पुराना है. इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स ऑल्सो, मीन्स ह्यूमन्स के नीचे वाले जो भी एनिमल्स हैं इनमें भी ये सब चीज़ें होती है. स्मेल एंड टेस्ट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ इंसुला, इन लैंग्वेज ऑन द पोस्टीरियर पार्ट. दे हैव दिस फंक्शंस बट दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड. ओके, दे कैन फील एंड दे कैन रिप्रेजेंट बट नॉट इन द स्पीच. They will represent in the sign language, and humans will represent this language with understanding of speech and execution of speech. So this is more developed in the humans. Now we will connect these areas with white matter. See, I recommend all of you to make a model, a drawing or print out of this both medial surface and lateral surface of cerebrum. ठीक है, सल्का एंड गायराई एक मॉडल में बनाओ और दूसरे मॉडल में एरिया के नाम, नंबर
फंक्शनल नेम्स। ये दोनों मॉडल्स आपको हमेशा साथ रखने हैं और उसी मॉडल में अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि उसको ट्रेन करने के बाद यू विल हैव अ रियल ब्रेन इन योर हैंड। वाइवा में आपको पूरा ब्रेन पकड़ाया जाएगा। इट विल बी राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यू विल होल्ड इट एंड यू विल स्पीक ऑल द नेम्स ऑफ ऑल सल्का एंड गायराई, और उसके बाद उसका एरिया का नाम एंड नंबर, ये पूरा आपको वाइवा में बोलना है। एंड यू नो देयर विल बी नो सच कलर्स। ये तो कंप्यूटर की कमाल होती है, बट इन द रियल ब्रेन यू विल हैव एवरीथिंग येलो, देयर इज नो कलर्स, सो यू विल हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड प्रैक्टिस योर सेल्फ विदाउट दिस विजुअल्स। ओके, पूरा मिनिमम 1 आवर यू शुड बी एबल टू स्पीक फॉर द होल सेरिब्रम। ठीक है, इतना तो वाइवा के लिए होता ही है। आउट ऑफ दैट 1 आवर यू विल हैव 10 मिनट्स लक बाय चांस क्वेश्चंस। ओके, so when you master this then you have to connect all the pathway। और कुछ भी नहीं समझ आता है तो you can ask, you can make a list of queries। okay, now we will see white matter। इससे पहले ये एक टॉपिक आता है homunculus। one word is given in your book that is called homunculus। homunculus is this pattern of parts of the body in the cerebral cortex। यहाँ पे आप देखो, you can see ये medial cerebral surface है, this is superolateral surface। okay, तो यहाँ अगर central sulcus है तो this is primary motor cortex area 4। तो if you follow this area 4, the representation of all parts of the body, मोटर कॉर्टेक्स मीन्स पूरे बॉडी की मोटर मूवमेंट्स, ऑल स्केलेटल मसल। तो डायग्राम में देखो, थंब है, फुट है, एंकल है, पूरा लोअर लिम्ब है, फिर थाई है, फिर थोरैक्स लोअर एब्डोमिनल पार्ट है। ठीक है, फिर आया अपर लिम्ब में फिंगर्स और सबसे बड़ा ये थंब। फिर आया अपना फेस में सबसे बड़ा लिप्स एंड टंग्स। ठीक है, फिर सबसे बड़ा लैरिंक्स। तो इसकी साइज जो है वो डिसप्रपोर्शनेट होती है। तो साइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज डिफरेंट, इट इज स्मॉल और लार्ज डिपेंडिंग अपॉन इम्पोर्टेंस। जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उतना ज़्यादा न्यूरॉन्स उसको मिलेगा। जैसे लैरिंक्स, टंग एंड लिप्स, उसको बहुत ज़्यादा एरिया मिला है। थंब को बहुत ज़्यादा एरिया मिला है क्योंकि इसको व्हाट्सअप करना है, इसको बहुत कुछ करना है, टच करना है। तो थंब इज प्राइमरी मूवर ऑफ द हैंड, और पूरा जो स्पीच एपरेटस है उसको भी ज़्यादा एरिया मिला है। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, उसको ज़्यादा सेरिब्रल कॉर्टेक्स मिलता है। और जो अनइम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, जैसे ग्रेट टो है, अपना लोअर लिम्ब है, ठीक है, कुछ जॉइंट्स है, तो इसको बहुत कम एरिया मिलता है, तो दे कैन नॉट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट, द टिश्यू इज रिप्रेजेंटेड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दैट फ्लो चार्ट, दैट पैटर्न इज नोन एज homunculus। That means we have two types, motor and sensory homunculus। This is motor homunculus। ऐसा ही डायग्राम आप बना सकते हैं सेंसरी होमोंक्यूलस। ठीक है, एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिश्यू इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस इज नोन एज होमोंक्यूलस। नाउ वी विल सी व्हाइट मैटर। मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको पता है, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। तो व्हाइट मैटर इट मीन्स हमने जितने भी एरिया अभी देखे उन सबको हमको वायरिंग करना है, तार लेके जोड़ना है। तो बंडल ऑफ व्हाइट मैटर वी हैव टू लर्न। सो बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। ओके, 3 मेजर टाइप्स। वाइवा में सबसे पहले हमें यही सोचना है, 3 मेजर टाइप्स: एसोसिएशन फाइबर, कमीशरल फाइबर
एंड प्रोजेक्शन फाइबर। ठीक है, तो इसका मीनिंग, दिस इज पैरासजाइटल सेक्शन। पैरासजाइटल मीन्स थोड़ा सा लेटरल जाके सजाइटल सेक्शन लिया है। ठीक है, अगर मीडियन, स्ट्रिक्टली मीडियन प्लेन में लेते हैं तो एक बंडल ज़्यादा आता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। दिस इज पैरासजाइटल और लेटरल सेक्शन, दिस इज फ्रंटल पोल, दिस इज ऑक्सीपिटल पोल। और वी आर सीइंग हियर एसोसिएशन फाइबर्स। तो एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या हुई? इट विल कनेक्ट सेम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और नियरर सल्काई एंड गायराई। जो भी गायरस नज़दीक है उनको कनेक्ट करता है एसोसिएशन फाइबर्स। सो छोटा है तो शॉर्ट एसोसिएशन, थोड़ा सा बड़ा है तो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर। इट विल कनेक्ट एडजेसेंट सल्काई एंड गायराई ऑफ द सेम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट और लेफ्ट। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर्स। फिर होता है, these are the large bundles: superior longitudinal fasciculus, inferior longitudinal fasciculus. It will connect different lobes. different lobes हमारे पास 4 है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये चारों लोब को कनेक्ट करना हो तो यू नीड this large bundle, that is called longitudinal bundle, superior longitudinal bundle and inferior longitudinal bundle. These are the two major fasciculi in the connecting different lobes of the cerebrum. फिर होता है आर्क्वेट fasciculus. आर्क्वेट जैसे ये यू शेप का था, शॉर्ट एंड लॉन्ग, इसका दूसरा नाम है आर्क्वेट फेसिक्यूलस। तो सब जगह अगर यू आता है तो नाम तो बदलना पड़ेगा, तो इसको अगर हमने आर्क्वेट नाम दिया, सो वी विल कॉल दिस एज अनसिनेट। इट इज अ यू शेपेड white matter connecting frontal lobe with temporal lobe. Uncinate fasciculus or frontotemporal fasciculus connecting frontal and temporal lobes. ठीक है, so these are the association fibers and इसमें एक और आता है मीडियल फोर ब्रेन बंडल, जो इस सेक्शन में नहीं दिखता। इफ यू टेक मीडियन स्ट्रिक्टली इन द मिड लाइन, ठीक है, तो देयर विल बी अ मीडियल फोर ब्रेन बंडल। तो ये कनेक्ट करेगा ऑक्सीपिटल लोब एंड फ्रंटल लोब, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फ्रंटल लोब विथ ऑक्सीपिटल लोब, इन दोनों को कनेक्ट करेगा मीडियल फोर ब्रेन बंडल। अभी हमने देखा देयर इज विजुअल फील्ड इन द फ्रंटल लोब एंड देयर इज विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर विजुअल सेंसरी एरिया यहाँ पे है और विजुअल मोटर एरिया इन द फ्रंटल लोब, तो इस दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? मीडियल फोर ब्रेन बंडल। ठीक है, कुछ देख लिया, कुछ समझ लिया कि ये क्या देखा, कि इसका कलर क्या है, इसका जो भी है, तो इसका स्टीरियोग्नोसिस करने के बाद उसको आईबॉल से ट्रैकिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चीज़ अगर घूम रही है तो हमारी आईबॉल्स भी तो घूमेगी। तो ये कनेक्शन आता है मीडियल फोर ब्रेन बंडल से आईबॉल को मोटर करने के लिए। इसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ द आईज, फॉलोइंग और ट्रेसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा टाइप हुआ प्रोजेक्शन फाइबर। तो ये क्या होता है? इट विल कनेक्ट लोअर सेरिब्रल सेंटर्स, टेलेन केफेलोन से नीचे जितने भी सेंटर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा प्रोजेक्शन फाइबर। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को छोड़ के नीचे जितने भी सेंटर है, दे आर कनेक्टेड टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाय
प्रोजेक्शन फाइबर्स, हायर सेंटर टू लोअर सेंटर और हाईएस्ट सेंटर टू ऑल लोअर सेंटर। कमीजरल, अब इन सब के जो नाम है वो आप देख लो। एसोसिएशन फाइबर में अनसिनेट फेसिकुलस, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, फ्रंटो ऑक्सीपिटल, इसका दूसरा नाम मीडियल फोरब्रेन बंडल, फ्रंटो ऑक्सीपिटल फेसिकुलस। फिर ये हुआ सिंगुलम, ये हमने देखा था लिम्बिक सिस्टम में। इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब। सिंगुलेट गायरस का फाइबर दैट इज सिंगुलम, ये कनेक्ट करेगा अपने हिपोकैम्पस को अदर पार्ट्स के साथ, ठीक है। कमीजर में आपको काफ़ी सारे नाम पता है। सबसे बड़ा कॉर्पस कैलोजम, इट विल कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट कॉर्टेक्स, पूरे के पूरे कॉर्टेक्स को कनेक्ट करेगा कॉर्पस कैलोजम एक्सेप्ट टेम्पोरल पोल, ऑडिटरी, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। टेम्पोरल पोल के अलावा पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट करेगा राइट एंड लेफ्ट। इसके पार्ट्स के नाम आपको पता है, रोस्ट्रम, चेनु, बॉडी एंड स्प्लेनियम। फिर हमने देखा था इंटीरियर कमीजर, ये आया था लेमिना टर्मिनालिस के ऊपर, एंड इट विल कनेक्ट फ्रंटल लोब, ओनली फ्रंटल लोब, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल लोब एंड ऑर्बिटल कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। फिर हमने देखा था पोस्टीरियर कमीजर, दैट इज पार्ट ऑफ पिनियल ग्लैंड, हेबेन्यूलर कमीजर और पोस्टीरियर कमीजर, ये दोनों these are the two parts of boundaries of habenular trigon on the front of pineal gland, okay, just interior to pineal gland, boundaries of habenular trigon formed by posterior commissure and habenular commissure। इसमें हमने देखा था habenular इंटीरियर साइड में लिम्बिक सिस्टम में से फाइबर्स आते हैं हेबेन्यूलर में, और पोस्टीरियर कमीजर में फाइबर्स आते हैं कोर्टिकोटेक्टल, टेक्टल मीन्स सुपीरियर कॉलिक्यूलस। So two superior colliculi are connected right and left with posterior commissure। फिर हिपोकैम्पल कमीजर, ये हमने देखा था फोर्निक्स का पार्ट, posterior part of body of fornix, right and left crus of fornix joined by hippocampal commissure, it will connect right hippocampus with left hippocampus। सब कुछ एच एच एच, आप देखो हिपोकैम्पल, हेबेन्यूलर एंड हाइपोथैलेमिक। हाइपोथैलेमिक कमीजर will connect right and left zones in hypothalamus। Ventral and dorsal supraoptic nuclei of right and left side joined by hypothalamic commissure। साइंटिस्ट के नाम याद रहते हैं तो रखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कॉर्पस कैलोजम ने हमने देखा था रोस्ट्रम, जेनू, बॉडी एंड स्प्लेनियम। तो रोस्ट्रम आगे आता है तो इसमें फ्रंटल लोब कनेक्ट करेगा, रोस्ट्रम एंड जेनू दोनों में फ्रंटल लोब कनेक्ट होंगे। ट्रंक आता है बीच में तो इसमें पैराइटल लोब्स कनेक्ट होंगे। स्प्लेनियम आता है पोस्टीरियर साइड में तो उसमें टेम्पोरल एंड पैराइटल दोनों कनेक्ट होंगे। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी जो भी एरिया है उसको आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। कॉर्पस कैलोजम की सुपीरियर सरफेस में कुछ चीज़ें हमने देखी थी। दिस इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है, वी हैव रिमूव्ड ऑल ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। So this is only corpus callosum upper surface। रोस्ट्रम और जेनू यहाँ से शुरू हुआ, ये है पूरा बॉडी, और यहाँ से शुरू होता है स्प्लेनियम।
तो on the upper surface of body of corpus callosum, you will have thin sheet of gray matter. Thin sheet of gray matter, part of limbic lobe or limbic system, continued from gyrus fasciolaris और suprasplenial gyrus. इसको कंटिन्यू करेंगे, that is called indusium griseum. Continuation of suprasplenial gyrus or gyrus fasciolaris, part of limbic lobe, it is called indusium griseum. थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर, उसमें थिकनिंग होते हैं, थिकनिंग का नाम है स्ट्राया, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राया एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राया. It is embedded within indusium griseum, upper part of body of corpus callosum. So rostrum and genu, when it connects left cerebral frontal lobe and right frontal lobe, if you connect rostrum and genu, this part is known as forceps minor. If you connect splenium on the back to visual cortex, right and left side, these fibers are known as forceps major. From the splenium of corpus callosum, the fibers passing from right and left occipital cortex, they are called forceps major. We have seen tapetum. What is tapetum? It is sheet of white matter in the occipital lobe and temporal lobe, lining the surface of ventricles, posterior horn and inferior horn. ऐसा कुछ हमने देखा था. Remember, posterior horn and inferior horn. If it is posterior horn, it is cavity of occipital lobe. If it is inferior horn, it is cavity of temporal lobe. तो ये हुआ हमारा विजुअल कॉर्टेक्स और ये हुआ हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स. इसके अंदर अगर आप जाएंगे, यू विल फाइंड posterior horn in the occipital cortex and inferior horn in the temporal cortex. तो इसको सुपीरोलेटरल सरफेस में जो वाइट मैटर कवर करता है, that is part of tapetum. So this is actually the part of internal capsule, fibers of internal capsule. ठीक है, उनका नाम भी देख लेते हैं. We will revise internal capsule sometimes again. This is right side internal capsule. It is V-shaped. उसकी concavity यहाँ पे आती है. Concavity will enclose lentiform nucleus. And these are the 3+2 parts of internal capsule. 2 को हमने separate किया और यहाँ पे 3 parts, anterior limb, genu and posterior limb. ठीक है, parts of internal capsule, anterior limb, genu and posterior limb. Anterior limb, अब इन तीनों पार्ट्स में सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स, एफरेंट्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इफरेंट्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो जो एफरेंट्स है उसका नाम है थैलेमिक रेडिएशन. थैलेमस से निकल के कॉर्टेक्स में जाते हैं. ठीक है, तो आपको थैलेमस पढ़ना पड़ेगा और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सभी एरिया पढ़ना पड़ेगा. ये दोनों में अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप इन फाइबर की डायरेक्शन समझ सकते हैं. तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट थैलेमस एंड सेरिब्रल कॉर्टिकल एरिया विथ फुल कॉन्फिडेंस. उसके बाद आपको इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स पढ़ने हैं. तो ये 3 और ये 2 इजी है. इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन इन ऑडिटरी रेडिएशन
पोस्टियर थैलेमिक रेडिएशन और ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। ये हुआ ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे। तो ये करने के बाद आपको ये फाइबर्स समझ में आएंगे, ठीक है। सबको मिला जुला के 3 पार्ट्स हियर एंड 2 पार्ट्स हियर, इन सबको इकट्ठा करो तो इट विल मेक योर सेरेब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है। सो दिस इज होल ऑफ योर इंटरनल कैप्सूल। तो जैसा मैंने बोला आपको सभी टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, उसके बाद ये हम समझ सकते हैं। इंटीरियर लिम्ब, चेनो, पोस्टीरियर लिम्ब, retrolentiform and sublentiform parts. All these will converge here in cerebral peduncle और यहाँ से pons, medulla, pyramid और cerebellum सब कुछ यहाँ से bifurcate होगा। We will cover it after you have all the background ready. Thank you. If you have any question, you can contact me on my phone within 2 minutes. Thank you.